So good morning to all of you. My today's agenda is a graphical analysis of dispersion and banding loss. And at the last, I will also discuss about your career perspective. What are you people are doing? Because the competition is very tough, and as you know, Infosys result is already came, so you know the the level of all these competition exams, right? So, no issue. All will be qualified in very soon in other competitive exam also. So first I will discuss about the today's agenda. Then I will also schedule your exam, and hopefully your final exams will be in the written exams. We will request to competent authority because online exam is not possible with huge number of, on currently available LMS. Okay, so no issue. First, I will discuss the graphical analysis of dispersion and banding loss. Since we know that the dispersions, how the dispersion will appear, how many types of dispersions. So today we basically there are two types of dispersion we have studied and drive the relation also. Material dispersions as well as waveguide dispersions, right? So first, you know that material dispersion will be zero at 1270 nanometer or 1310 nanometer, right? As already I have proved. And at the same time, waveguide dispersions is inversely proportional to wavelength, and how they will, what are the factors are responsible for waveguide dispersions. I have also proved in the last class. Okay, after the exam, now I continue that dispersion part, and today's my main agenda is a banding loss, right? And tomorrow, throughout the class, we will solve the numerical analysis. Okay, we will do the some numerical and do the analysis also. So now I'm going to share my screen for today's class. So the first agenda is graphical analysis of material dispersions and waveguide dispersions, and the resultant of material dispersion and waveguide dispersions is known as कौन सा dispersion बोलते हैं roll number 1. If the material dispersion and chromatic waveguide dispersion is will be add, then which type of dispersion will appear in resultant as a resultant? Chromatic. Since now here you can observe this graph. This is the dispersion graph. You people also highlighted. You can write as picosecond per nanometer per kilometer or picosecond per nanometer hyphen kilometer. Okay, so both the units can be possible. So here, how this is the zero reference line, and positive axis. This is the increasing plus 20 plus 40 plus 60 is minus 20 minus 40 minus 60. Since we know that material dispersions is zero at 1270 nanometer. So this is the wavelength. This is the wavelength. This is 850. This is 1270. And आगे भी लिख लो आप 1550 1650 ऐसे लिख दीजिए. This is the x-axis. X-axis is the wavelength. Please draw the graph. X-axis is the wavelength. Y-axis is the dispersions, right? Since from the last analysis, we know that material dispersion is zero at 1270 nanometer. So material dispersions will be in such a way, they will pass in such a way, they will zero at 1270 nanometer and then increases and first decreases. So material dispersion का ग्राफ कैसा था? कर्वेचर नेचर का. या देखा था आपने लास्ट क्लास में. So they will be minus also and positive also. So both are there. So so graph of material dispersion is look like this. This is the material dispersions. Please plot one by one. Otherwise, एक बार में आप plot नहीं कर पाओगे बिटू, है ना? So dispersions here y-axis, wavelength in x-axis. Since we know that as far as we have already proved that material dispersion is zero at 1270 nanometer. So 1270 nanometer is zero, right? Dispersion is zero. So दिख रहा है रोल नंबर 40 दिख रहा है बेटू कि 1270 नैनोमीटर पे क्या दिख रहा है? गुड मॉर्निंग सर, दिख रहा है. हाँ जीरो.
और यहाँ से माइनस से और पॉजिटिव दोनों क्यों था, तो आपको पता होगा कर्वेचर था, देखा था आपने कर्वेचर। यस सर। ओके, नाउ दिस इज द मटेरियल डिस्पर्शन, राइट, दिस इज द मटेरियल डिस्पर्शन ग्राफ। को इतने से अच्छे नहीं समझ पाओगे अपने से करोगे तो। सो व्हाई दिस ग्राफ इज देयर, ड्यू टू द मटेरियल डिस्पर्शन का जो एनालिसिस था। साकिब अंडरस्टूड, ये इतना सही है मटेरियल डिस्पर्शन का? यस सर। एंड दूसरा एनालिसिस हमने किया था कि वेवगाइड डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये भी प्रूव किया था लास्ट क्लास में। वेवगाइड डिस्पर्शन का रिलेशन देखोगे, जब मैंने डिराइव किया था तो आपने देखा होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ था साकिब लास्ट क्लास में। यदि लेक्चर का आप रेफर करोगे तो हमने प्रूव किया था वेवगाइड डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। तो यस जब सर। आप जब हमने बहुत बड़ा प्रूव किया था तो हमारा एक रिलेशन आया था dwg is equal to minus n2 del by c into v by lambda, है ना, v by lambda, यानी वेवगाइड डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दैट मींस इसका मतलब साकिब क्या है कि वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आपका डिस्पर्शन कम होता जाना चाहिए, होना चाहिए बेटू, यस सर। ट्रेडिशन। सो दिस इज द वेवगाइड डिस्पर्शन दैट विल बी डिक्रीजेज एज वेवलेंथ इज इंक्रीजेज। यहाँ पे जरूर तुम लोग मार्क कर लो, मैं अभी जो बनाया उसमें भूल गया मैं। यहाँ पे 1550 नैनोमीटर डाल दीजिए, तीनों विंडो डाल दीजिए बेटो, 850, 1350, 1550 तीनों डाल दीजिए। सो दिस इज द वेवलेंथ एंड एज पर द डेरिवेशंस ऑफ लास्ट क्लास वेवगाइड डिस्पर्शन इज डिक्रीजेज एज वेवलेंथ इंक्रीजेज, राइट। सो दिस इज द ग्राफ। सो वेवगाइड डिस्पर्शन आ गया, मटेरियल डिस्पर्शन आ गया। सो नाउ वी हमारा आज का एनालिसिस ही है कि रिजल्टेंट डिस्पर्शन का ग्राफ कैसा होगा। यानी मतलब पता था कि ग्राफिकल एनालिसिस कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये कि ग्राफिकल व्यू बोला जाए। डेविएशंस चलो कि इतना टाइम नहीं होता कि आपको ड्राइव करने के एग्जाम के लिए पूछे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बट ग्राफिकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो मटेरियल डिस्पर्शन लुक लाइक दिस एंड chromatic dispersion लुक लाइक दिस, राइट। ओके, so I want to ask who is there. बासु बासु महाजन, बासु। यस सर। हाँ, अब ये बताओ बेटा कि यदि मुझे रिजल्टेंट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका मुझे ऐड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बेटू, है ना। यस सर। और ये है जीरो और ये है ज्यादा निगेटिव, तो जब दोनों जीरो दोनों जब जुड़ेगा तो नियर अबाउट थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये थोड़ा सा ऊपर है बेटू, ये ना +10 की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर डिक्रीजेस प्लस से नेगेटिव की तरफ। तो ये वाला जो लाइन है वो रिजल्टेंट में थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, नियर अबाउट 40 के तरफ या 55 के तरफ, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता सकता मैं, दिस इज ग्राफिकल एनालिसिस। तो यहाँ से स्टार्ट होते होते इन दोनों के बीच में आएगा, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पॉजिटिव, दिस इज द लोअर नेगेटिव, राइट। ये ज्यादा ऊपर रखना, हाँ ये थोड़ा ज्यादा ऊपर रखना, ये थोड़ा नीचे, कम नीचे रखना। इन दोनों का जब रिजल्टेंट जोड़ोगे तो +30 और -20, तो कितना होगा, नियर अबाउट +10, है ना। सो द रिजल्टेंट ग्राफ इज लुक लाइक दिस। सो रिजल्टेंट ग्राफ लिख लो यहाँ पे, ये वाला ग्राफ, ये ब्लैक वाला जो कलर है ना, दिस इज द क्रोमेटिक डिस्पर्शन। सो राइट डाउन, chromatic dispersion is lies between waveguide and d material as a graphical analysis. So please, so this is the final graph of d material loss, waveguide dispersions, and this is the chromatic dispersion. इन दोनों का addition. Since we know that d-chromatic, mute कर लो, d-chromatic is equal to d material plus waveguide, right? And we know that this is the waveguide is inversely proportional to wavelength. D material is 0 at 1270 nanometer, right? So this is the Muskan Sharma. Yes sir. हाँ, तो ये क्या है, डी मटेरियल क्या था, 0 पे था, सही है ग्राफ। Yes sir. और वेवगाइड डिस्पर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये भी सही है। Yes sir. और क्रोमेटिक इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो ये ग्राफ आया है, दैट इज द क्रोमेटिक डिस्पर्शन। Yes sir. रिजल्टेंट ग्राफ ऑफ, सो कभी भी ग्राफिकल एनालिसिस यदि कभी पूछा जाए, so this is the graphical analysis for the dichromatic, d-material and d-waveguide. Understood? Yes sir. Okay. So this after this I will move the second part of this. Now write down observations. So write down observation from above analysis. Observation from above analysis और impact of dispersion भी बोल सकते हो।
impact of dispersion in optical fiber. Impact of dispersion in optical fiber. तो बकास ऑनलाइन हो? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्शन? ग्राफ समझ में आ गया बकास? क्लियर? Yes, sir. Okay. हाँ, सो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अबव एनालिसिस दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्शन. इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्शन क्या क्या हो सकता है? तो तीन चीजें हैं. पहला लिख लीजिए, पल्स ब्रॉडनिंग में बी इंक्रीज. पल्स ब्रॉडनिंग में बी इंक्रीज. Pulse broadening may be increased. Second is intersymbol interference will be appear. Intersymbol interference will be appear. Pulse broadening may be increased. Intersymbol interference will be appear. And third, energy, that is photon energy in electron volt will be also decreased. That energy, that is photon energy in electron volt. Electron volt को छोटा ही बड़ा भी में लिखते हैं, थोड़ा मैं उल्टा लिख दिया था, इसको काटा हूं. That is photon energy in electron volt will be also decreased. So the question is, जो ये सब नहीं आएगा बट ये आएगा, 2014 गेट में पूछा है कि पल्स ब्रॉडनिंग EMT के थ्रू पूछा है. पल्स ब्रॉडनिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पल्स ब्रॉडनिंग इज टाउ is equal to mod d sigma lambda l. mod d क्या है? ये डिस्पर्सन. सिग्मा लैम्डा को बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रल विड्थ, और l को बोलते हैं लेंथ ऑफ द फाइबर. तो ब्रॉडनिंग तीन चीजों पर डिपेंड करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रल विड्थ एंड लेंथ ऑफ द फाइबर, तीन चीजों पर डिपेंड करता है. ओके, सो लोकेश अनम्यूट करो. लोकेश. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ बेटा, स्पेक्ट्रल विड्थ एलईडी का ज्यादा होता है, अच्छा होता है कि ये लेजर का? किसका स्पेक्ट्रल विड्थ ज्यादा अच्छा माना जाएगा यहाँ पे? सर एलईडी के लिए स्पेक्ट्रल विड्थ ज्यादा होती है और लेजर की कम होती है. कम होती है. तो हमें कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए पल्स ब्रॉडनिंग के लिए? सर पल्स ब्रॉडनिंग होगी तो ज्यादा चाहिए. नहीं, पल्स ब्रॉडनिंग तुम्हें ज्यादा चाहिए होता है कि कम चाहिए होता है? सर पल्स ब्रॉडनिंग को कम करने के लिए स्पेक्ट्रल विड्थ कम चाहिए होती है. कम चाहिए होगी. यस. तो कौन सा सोर्स यूज करोगे लोकेश? वेरी गुड. लेजर सर. लेजर. सो ऑलवेज लेजर विल बी यूज बिकॉज स्पेक्ट्रल विड्थ कम तो स्विचिंग स्पीड ज्यादा और ब्रॉडनिंग भी कम. डिस्पर्सन भी क्या चाहोगे आप? कम से कम. और यदि एसएमबीट्यू से जम्मू भेजो और एसएमबीट्यू से दिल्ली भेजोगे, किसमें पल्स ब्रॉडनिंग ज्यादा होगी? दिल्ली. दिल्ली, बिकॉज लेंथ ऑफ द फाइबर पे डिपेंड करता है. सो वेरी गुड. सो बाय डिफॉल्ट यदि तुम ऐसे अंडरस्टैंड करते हो ना तो हमेशा याद रहेगा, अच्छा पल्स ब्रॉडनिंग बोल रहा है तो डिस्पर्सन तो सर ने बताया था. बाकी क्या क्या है कि एलईडी और लेजर जो सोर्स है उसमें स्पेक्ट्रल विड्थ लेजर का कम होता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लेजर कोहेरेंट नेचर है तो स्पेक्ट्रल विड्थ कम होगा तो ऑन ऑफ जल्दी होगा. लेंथ ऑफ द फाइबर सिंपल बाय डिफॉल्ट है कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पल्स ब्रॉडनिंग होगी. क्लियर? सो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ नीलकमल, पल्स ब्रॉडनिंग के लिए कभी भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पल्स ब्रॉडनिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द फाइबर. नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर है डिस्पर्सन, है ना, जो आपने अभी पढ़ रहे हैं हम. लेंथ ऑफ द फाइबर बाय डिफॉल्ट. वेरी गुड. लेंथ ऑफ फाइबर और स्पेक्ट्रल विड्थ. और स्पेक्ट्रल विड्थ हमेशा कम चाहिए कि ज्यादा बेटू? सर स्पेक्ट्रल विड्थ सर लेजर के केस में सर कम चाहिए आपको? कम चाहिए कि ज्यादा? लेजर में केस तो कम होता है. कम चाहिए होता है कि ज्यादा? क्यों? स्पेक्ट्रल विड्थ पढ़ाया था मैंने. स्पेक्ट्रल विड्थ कम होने से क्या होगा? ऑन ऑफ स्विच जल्दी होगा. ऑन ऑफ. यदि ज्यादा स्पेक्ट्रल विड्थ होगा तो ऑन ऑफ धीरे धीरे होगा कि नहीं होगा? यस सर. हाँ. सो दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ द पल्स ब्रॉडनिंग. ओके, सो होपफुली हमने बहुत डिटेल में डिस्पर्सन पढ़ा, क्या क्या डिस्पर्सन का फैक्टर है, कैसे कैसे आया. दो टाइप का मैंने डेरिवेशन किया, दोनों का मैथमेटिकल एनालिसिस किया, दोनों का मैं ग्राफिकल एनालिसिस कर रहा हूं, उसका इंपैक्ट देखा. राइट? सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द डिस्पर्शन. इतना डिटेल से मैंने आपको बताया और मुझे लगता है कि कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यदि आप इतना आप कर लेते हैं, बिकॉज आपके पास बहुत सारे भी काम है ना.
व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा अभी थोड़ा सा आप अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो मुझे लगता है कि ये जितना मैंने पढ़ा है उसको तो जरूर देख ले, है ना। ओके, नाउ हम आगे बढ़ेंगे। एक और कंसेप्ट है बिफोर वी विल मूव टुवर्ड्स द टुडेज एजेंडा, एंड आज का एजेंडा है बैंडिंग लॉस। एक पूछा जाता है हमेशा कि यूवी लाइट और आईआर लाइट में कौन अच्छा इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। यदि मैं ऑप्टिकल फाइबर है और अल्ट्रावायलेट रे दूं या आईआर दूं तो दोनों में मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इसका मैं ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू आपको हमेशा याद रहेगा वैसा बता रहा हूं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, याद रखना यूवी लाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ ग्लास होता है, लिख लो। अल्ट्रावायलेट रेज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ ग्लास एंड आईआर जो रेज है वो बैड कंडक्टर ऑफ ग्लास। आप टेस्ट भी कर सकते हो। और हाँ, कल मैं न्यूमेरिकल करूंगा, नेक्स्ट वीक में हम 2-4 लैब करेंगे। मैं लैब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको, बिकॉज क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो कि अभी आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, बट दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। लैब थोड़ा सा हमेशा याद रहता है बंदे को। सो ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यूवी लाइट और आईआर लाइट, कभी भी आपको प्रैक्टिकली किसी कोई पूछे कि कौन सा लाइट ऑप्टिकल फाइबर के लिए बेस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ ग्लास है और आईआर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ ग्लास है। बोलो कैसे सर? यस। तो इसके लिए बाद में ये कंक्लूजन है, ऊपर में जो मैं लिखा हूं वो कंक्लूजन है, बट दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस। तो मैं पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं ग्राफिकल एनालिसिस बताता हूँ। तो पहले वाई एक्सिस पे लिखिए बेटा डिस्पर्सन, सॉरी लॉस, वाई एक्सिस पे लिखिए लॉस और एक्सिस पे लीजिए एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए, फिर मैं अच्छे से बताऊं। So compare between UV and IR loss as for the optical fiber communication, उसके लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ग्राफिकल एनालिसिस और प्रैक्टिकल एनालिसिस है कि आप एक फाइबर लिया, एक बार यूवी लाइट लगाया, एक बार आईआर लाइट लगाया, देखिए कि कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पा रहा है कौन, उसका एनालिसिस है ये। सो देख लीजिए, वाई एक्सिस पे लिखिए बेटा लॉस इन डीबी, एक्सिस पे लिखिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और ये पैरेलल भी है सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ये ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, क्योंकि दो ग्राफ है इसलिए दो ग्राफ को एक ही साथ एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, और कोई बात नहीं। नहीं भी लिखेंगे ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझा दूंगा कि क्या है। तो पहले लिख लीजिए एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए 2.5, उल्टा लिखिएगा 2.5 2 1.5 1 0.5, यहाँ पे उल्टा है 1.2 1 होता ही है, जब दो ग्राफ आप लेते हैं तो रिवर्स चलता है 1.2 1.1 1 0.9 0.1 डॉट 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 0.7 0.6 0.5 0. So this is both are the energy level in electron volt. This is the loss. So graphically पहले प्लॉट कर लीजिए, पहले मैं जैसा रुक जाना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा प्लॉट करना। एक लाइन ये आ रही है, देख रहा बेटा, ये लाइन एक लाइन 10 dB से नीचे की तरफ आ रही है, राइट, और 0.5 और 1 के बीच में कहीं कट रहा है। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन लॉस इन अल्ट्रावायलेट रेज, एब्जॉर्प्शन लॉस इन अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। तो एक ग्राफ है 2 और 1.5 के बीच में है, और ये यहां से देखना, ये साइन देख रहे हो, ये डिक्रीजेस का साइन है ऊपर से नीचे की तरफ, राइट, और ये साइन देख रहे हो, ये ऊपर ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, लॉसेस के टर्म में ये बढ़ रहा है। और ये जो ग्राफ है बेटू, ये ग्राफ है एब्जॉर्प्शन लॉस इन आईआर, एब्जॉर्प्शन लॉस इन आईआर। देखना ये एरोज ऊपर की तरफ बना हुआ है बेटू, और ये लाइन है, इसमें एरोज नीचे की तरफ बन रहा है। सो this is the absorption loss in UV, this is absorption loss in IR। तो लिख लीजिए प्लीज, सबसे पहले ये लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं। तो कहने का मतलब ये है, जब प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया हमने तो लॉस इज डिक्रीजेज, राइट, लॉस इज डिक्रीजेज, नो डाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी कम हुआ है, बट लॉस इज डिक्रीजेज व्हेन वी विल यूज अल्ट्रावायलेट रेज, and here the loss is increases when we are using IR rays, क्योंकि लॉस जो है इसमें बढ़ रहा है और इसमें घट रहा है।
यानी कहने का होता है कि जब आप लाइट को सॉरी ग्लास में अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे, तो मैंने बताया था कि कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो एब्जॉर्प्शन फेनोमेना होता है, स्कैटरिंग भी होता है, बट एब्जॉर्प्शन की मेन फैक्टर होता है जो यूवी लाइट और आईआर लाइट को दोनों को एब्जॉर्ब करता है। बट हमने देखा कि यूवी लाइट में लॉसेस कम होते हैं, बट आईआर में लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन दोनों कंक्लूजन के साथ इन दोनों ग्राफ के साथ हमने कंक्लूजन निकाला कि यूवी लाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ ग्लास एंड आईआर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ ग्लास। तीसरा ग्राफ दिख रहा होगा, ये वाला, ये डॉट 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 ब्लैक वाला, कि ये दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट। ये डॉट 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 थोड़ा कर्वेचर नेचर का होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, बिकॉज कहीं पे ये ज्यादा है, एक कहीं पे कम है। दिस इज द रिजल्टेंट ग्राफ ऑफ आईआर एंड यूवी। और ये बीच में रिजल्टेंट के साथ एक जो पीक बन रहा है, वो हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन में हाइड्रोक्सिल आयन जो है अपना OH माइनस आयंस है, उसके कारण हमारा एक पीक बनता है लॉस का, एटोनेशन का। So this is the attenuation loss. This is the peak due to OH minus ion. This black color is the resultant graph. This graph is IR, absorption due to loss in IR. This graph is absorption loss due to UV. So UV में डिक्रीज हो रहा है absorption loss, और जिसके कारण attenuation loss भी कम हो रहा है। और in the case of IR आपका absorption loss जो है वो बढ़ रहा है, और हमारा attenuation भी बढ़ रहा है। So through this graph, we can conclude that UV light is a good conductor of glass and I is a bad conductor of glass, right? So hopefully मैंने एक एक चीज पहले बोला कि y axis पे आप लॉस डालो 0.001, 0.1, 0.01, 0.11, 10, 100 dB. This is the loss. This is the 2.5 to 1.5. तो पता है, दो ग्राफ को एक में प्लॉट करते हैं, तो एक इस तरफ से बढ़ता है, तो एक तरफ इस तरफ से and this is the resultant graph. So Saqib understood किया ग्राफ को? Yes sir. So finally the conclusion is, और hopefully सबने बहुत अच्छे से मैंने बताया एकदम आराम तरीके से, नो डाउट आपको खुद से भी प्लॉट करना है, ऐसा नहीं कि बस आप सिर्फ मैं बताता जाऊं और आप देखते जाएं, तब याद नहीं होगा, आपको प्लॉट भी करने हैं, राइट? एंड वेरी सून मैं कभी भी विदिन 2 आवर 3 आवर का टाइम दूंगा, और जो असाइनमेंट का है, जो हमारा मैंने जो पढ़ाए अभी तक, सारे के नोट्स मंगाऊंगा, मैं कभी भी मंगा सकता हूँ। सो प्लीज आप अपना नोट्स बनाते जाइए, राइट? सो दैट अब मैं जानता हूँ यदि आप अपने से मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बना रहे हैं, तो मतलब आपको अलग से पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द कंपेयर बिटवीन यूवी एंड आईआर। सो व्हिच वन इज गुड फॉर साकिब, यूवी या आईआर इन ऑप्टिकल फाइबर? यूवी। यस। एंड क्रोमेटिक वेवगाइड का मेन रिलेशन क्या है वेवलेंथ के साथ? क्या होता है वेवगाइड डिस्पर्सन वेवलेंथ के साथ? क्या होता है साकिब, बढ़ता है या घटता है? क्या सर? वेवलेंथ के साथ वेवगाइड डिस्पर्सन कम होता है या ज्यादा होता है? वेवलेंथ इंक्रीजेज, वेवगाइड डिस्पर्सन क्या इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? सर डिक्रीजेज। एंड मटेरियल डिस्पर्सन इज 0 एट 1270 नैनोमीटर। ओके, सो नाउ अभी तक मैंने बहुत मतलब 4-5 क्लास से मैंने डिस्पर्सन पढ़ाया, एंड इसलिए पढ़ाया कि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ द क्वेश्चन, आज का जो हमारा एजेंडा है, राइट डाउन, सबको लिख लीजिए। आज का एजेंडा है हमारा बेंडिंग लॉस। नाउ बेंडिंग लॉस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेंडिंग लॉस, राइट डाउन बेंडिंग लॉस। ओके, तो बेंडिंग लॉस में वी नो दैट, आप बना लीजिए कोर, दिस इज द कोर, दिस इज द क्लैडिंग, राइट? एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द फाइबर। ये जो लाइन जा रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द फाइबर, राइट? अब क्या हुआ, आपको 2014 या का बाढ़ याद नहीं है? श्रीनगर में बहुत तेज बाढ़ आई थी, और यहाँ भी जम्मू में भी बहुत तेज बाढ़ आई, बहुत ज्यादा फ्लड था, इंटेंसिटी फ्लड था। तो क्या हुआ था, कम्युनिकेशन का तो जरिया खत्म ही हो गया था। दूसरा क्या हुआ था, फाइबर मतलब उस पर पानी उनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज का फर्क पड़ता है, मतलब वो बैंड हो जाता है। बैंड हो जाता है, क्या हुआ था कि जब भी आप सड़क के किनारे जाएंगे तो एक येलो मार्क दिखेगा आपको, या यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, दिस इज द हिली एरिया। तो श्रीनगर में भी और जम्मू में भी
ये उधमपुर वाला एरिया का मुझे याद है, बिकॉज मैंने पर्टिकुलरली देखा उस इंसिडेंट को। तो जो जो पहाड़ी एरिया था ना, वो शिफ्ट हो गया था थोड़ा सा, मतलब पूरा स्लाइडिंग के कारण शिफ्ट हो गया था। तो जो फाइबर लगा हुआ है सड़क के किनारे, श्रीनगर में भी ऐसे ही हुआ होगा 100%, आई डोंट नो, मैं वहां पर विजिट नहीं किया। तो जो फाइबर होते हैं ना, फाइबर मतलब सॉलिड होते हैं ना, उसके क्लैरिंग सॉलिड होता है, उसको जैसे उस पर लोड पड़ा तो वो डिफॉर्म हो गया, राइट, सम डिफॉर्मेशन इज देयर। तो डिफॉर्मेशन दो तरीके होते हैं। यदि थोड़ा सा यदि कोई उस पर लोड आ जाए, जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ हो और सडनली से उस पर कोई बिल्डिंग गिर जाए, एक बड़ी बिल्डिंग गिर जाए, तो वो दब जाएगा फाइबर, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। बट यदि कोई हिली एरिया में पूरा पहाड़ी उसके ऊपर गिर जाए, और मतलब बहुत अमाउंट में, इतना ज्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, पूरा लैंडस्लाइड हुआ था, और पूरा फाइबर जो है ना, पूरा देखो फाइबर ऐसे हो सकता है। एक तो चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये कोई फाइबर है, तो फाइबर जो है वो डिफॉर्मेशन के कारण थोड़ा सा बैंड हो सकता है, हल्का हल्का बैंड हो सकता है। और एक यदि पूरा पहाड़ यदि हो गया तो ऐसे हो जाए, राइट। एक तो एक थोड़ा सा बैंड हो रहा है, थोड़ा सा, और एक पूरा ऐसा बैंड। so there are two types of bending loss। एक बोलते हैं मैक्रो बैंडिंग, एक बोलते हैं माइक्रो बैंडिंग। तो माइक्रो छोटा या मैक्रो छोटा, कौन बताएगा? रिया, रिया बताओ, मैक्रो छोटा या माइक्रो? सर मैक्रो। मैक्रो छोटा। मैक्रो का 10 पावर माइनस क्या होता है बेटू? 10 to the power -6। मैक्रो सोच के बताना, बहुत पीटूंगा मैं। और माइक्रो, अच्छा चलो मैक्रो 10 पावर, सर माइक्रो होता है 10 to the power -6 और मैक्रो होता है 10 to the power -3। ओके, तो मैक्रो बड़ा कि माइक्रो माइक्रो बड़ा? सर नेगेटिव के हिसाब से तो माइक्रो बड़ा। माइक्रो नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये सिंपल बताओ मुझे। नेगेटिव तो दोनों है। सर मैक्रो बड़ा हुआ। माइक्रो बड़ा हुआ? नहीं, माइक्रो बड़ा हुआ। माइक्रो बड़ा हुआ है मैक्रो? सर माइक्रो। माइक्रो, ओके। ये आकांक्षा, आकांक्षा बताओ, मैक्रो बड़ा या माइक्रो? माइक्रो छोटा होता है या मैक्रो छोटा होता है? सर मैक्रो 10⁻⁻6 है। मैक्रो? मुझे नहीं पता। बाप रे, सही है, वेरी गुड। हाँ, बताओ ये साकी बताओ, तुम ही बताओ। नहीं ये दिग्विजय, दिग्विजय। यस सर। हाँ बताइए प्रभु, आप ठीक हैं? ठीक है सर। हाँ बताइए प्रभु, मैक्रो और माइक्रो? मैक्रो छोटा होता है सर, माइक्रो बड़ा होता है सर। माइक्रो बड़ा होता है, वेरी गुड। हाँ बकास। यस सर। हाँ, मैक्रो बड़ा या माइक्रो बड़ा? मैक्रो बड़ा। सो इकोनॉमिक्स में करते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मुझे वही याद आया था। यस यस यस, नहीं सिंपल ना, एक 10⁻³ है तो 1/10⁻³ पार्ट, और एक में 1/10⁻6 पार्ट है ना। तो सिंपल यार, मतलब आई एम रियली शॉक कि मतलब आप माइक्रो मैक्रो वो रियली गुड, तुमने उससे एग्जांपल्स ले लिया। इकोनॉमिक्स तो हम बोल सकते हैं, राइट, एक छोटा एक बड़ा। तो हमेशा याद रखना कि माइक्रो जो है छोटा वैल्यूज होता है और मैक्रो जो है उससे बड़ा वैल्यू होता है इन द रेफरेंस ऑफ जीरो, राइट। यदि आप जीरो में करेंगे तो सो यस, सो एक होगा छोटा लॉस, एक होता बड़ा लॉस। और याद रखना इसमें कंफ्यूजन, जैसे कंफ्यूजन कर रहे हो तो ऐसे कंफ्यूजन करोगे तो लिख लेना बैंडिंग लॉस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंडिंग लॉस, micro bending loss and macro bending loss. Please write down micro bending loss and macro bending loss. Micro bending loss and macro bending loss. Okay, so तो मैं एक कोई फाइबर है, यदि कोई इस पे बिल्डिंग गिर जाए, एक बिल्डिंग भी गिर जाए, और एक में पूरा पहाड़, पूरा हिली एरिया जो है वो गिर जाए, तो किसमें कौन सा लॉस होगा? रोल नंबर 39, रोल नंबर 39।
हाँ बताइए बेटू, एक कोई फाइबर है, एक में एक बिल्डिंग गिर गया उसके ऊपर, और एक में पूरा पहाड़ गिर गया उसके ऊपर, सर कौन सा किसमें लॉस? सर बिल्डिंग में माइक्रो होगा वेरी गुड, पूरा मतलब माउंटेन गिर गया मैक्रो होगा। वेरी गुड। सो क्लियर कि माइक्रो जो है छोटा लॉस है और मैक्रो जो है वो बड़ा लॉस है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि माइक्रो लॉस में डिफॉर्मेशन होगा, जैसे कि मतलब हल्का सा डिफॉर्मेशन, राइट। क्या नाम है बेटू आपका? देख नहीं पा रहा हूँ सर निरेन। हाँ सुनील, देखो एक मतलब ऐसा है थोड़ा सा बैंडिंग, एक में ऐसा हो जाएगा कि नहीं पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा तो, यस सर। राइट। और हमने पढ़ा है कि कोर, क्लैडिंग और शिल्डिंग जो बनी होती है और बीच के अंदर एक्सिस ऑफ फाइबर है। तो आप ही बताओ निरंत, जब ये एक्सिस जो है, यदि छोटा सा बिल्डिंग कोई गिरेगा तो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा ना, थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। बट यदि पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा तो ये पूरा बैंड हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, पूरा फाइबर बैंड हो जाएगा। तो हम जो एक्सिस के ऊपर हमने एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का एक हमने पढ़ा था, मैंने पूछा भी था कि RR सी रेड रेड ग्रीन ग्रीन सब में कंस्ट्रक्टिव बनता था। तो एक ना फील्ड बनता था मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम हर एक्सिस पे बन रहा था ना, एक्सिस पे। लेकिन जब वो बैंड हो जाएगा तो वो जो ये मेन जो मैक्सिमा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, मैं जो अभी दिखाऊंगा आगे। चलिए अभी उसे कंफ्यूज नहीं करना है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंडिंग लॉस, माइक्रो एंड मैक्रो। होपफुली ये आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि माइक्रो बैंडिंग लॉस है वो छोटा लॉस है, और मैक्रो बैंडिंग लॉस है जो बड़ा लॉस है। सो कभी भी याद रखिएगा, माइक्रो बैंडिंग मतलब सर का कहना का मतलब ये था कि कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाए, उसके बारे में सर ने बात किया था। मैक्रो बैंडिंग लॉस में हिली एरियाज में ये कोई फ्लड आ जाए या बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाए, उसके लिए बात कर रहे होंगे सर। तो दिस इज द टू केस स्टडीज, राइट, जो हमेशा आपको याद रखना है। नाउ हियर वी कैन सी द एक्चुअल कंडीशन। तो मैंने बताया था यहाँ पे कोर है, ये क्लैडिंग एरियाज है। ये जो है बेटा, ये पहला जो एरिया देख रहे हैं हम, दैट इज द नॉर्मल फाइबर। यदि कोई नॉर्मल फाइबर है तो उसमें ऐसे करते हैं। तो आपको पता होगा एक में फेस फ्रंट्स, वेव फ्रंट, सबको पता है ना बेटू, बताया है ना। तो ये जो जा रहा है दैट इज द फेस फ्रंट्स, और ये जो लाइन है दैट इज द वेव फ्रंट्स। दिस इज द नॉर्मल फाइबर, दिस इज द नॉर्मल फाइबर। लिख लीजिए, कोर, क्लैडिंग, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन है एनर्जी प्रोपगेशन का, दिस इज डायरेक्शन। बट दिस इज द बैंडिंग लॉस कंडीशन। कैसे? छोटा हो या बड़ा हो तो बैंड होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो फाइबर है वो मुड़ गया, ये फाइबर जो था हमारा बैंड हो गया, राइट, ऐसे बैंड हो गया, जो मैंने भी बताया था। सो बैंडिंग के लॉस का सिंपल है मीनिंग कि कोई फाइबर पे कोई लोड आ गया है या कोई डिफॉर्मेशन हो गई है ज्यादा, तो ऐसे हो गया, राइट। सो नाउ इज द क्लैडिंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द कोर, सीधा नहीं होते हुए थोड़ा टेढ़ा, एंड दिस द क्लैडिंग, राइट, दिस क्लैडिंग कोर सेम। बट सब कुछ वेव फ्रंट्स भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट इसमें और इसमें 2 पाई का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी 2 पाई का डिफरेंस है बैंड होने के बावजूद। बट लॉसेस कुछ होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो बकास क्लियर है ये इस ग्राफ को देखते हुए? फर्स्ट वन इज अ सिंपलर, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इज सिंपलर, हियर इज द बैंड, राइट। नाउ इसमें क्वेश्चन था एक, हाँ बोलो, बेंडिंग से कुछ टीआईआर पे फर्क पड़ेगा क्या सर? हाँ पड़ेगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के में तो टीआईआर तो होगा, लेकिन उसके साथ जो फील्ड बनता है ना बेटा, मोड जो बनता है, मोड मैक्सिमम, ऐसा वाला मैक्सिमम वाला, वो कोर में न रहते हुए क्लैडिंग की तरफ शिफ्ट होगा। देखो ना, ऐसे तुम्हारा ये था मैक्सिमम, हाँ है ना, याद आया? टीआईआर का मैक्सिमम याद रखो, वो सीधा एकदम स्ट्रेट है तो बीच में आ रहा है, एक्सिस और फाइबर के बीच में आ रहा है। लेकिन तुम उसको बैंड कर दोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम वाला लोब था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर। तो मेन फील्ड में फर्क पड़ेगा? यस, गुड क्वेश्चन। यस, मेन फील्ड जो मोड जो था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो बाहर की तरफ चला जाएगा तो हमारा मैक्सिमम मिला नहीं एक्सिस पे, तो हमारा प्रॉब्लम आएगा, जो मैं बताऊंगा वीडियो डिटेल से, और डिटेल से बताने वाला हूँ। यस, मेन फर्क वही है कि बेंडिंग, अगर बेंडिंग हो गया तो तुम बोलोगे यार बेंडिंग हो गया क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बेंडिंग होने से टीआईआर के कारण जो मोड फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमने RRGG कंडीशन में देखा था, उसको देखो RRGG वाले को, तो वो जो फील्ड है तो उसको तुम बेंड करोगे तो वो कोर के से क्लैडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं बकास? यस सर। हाँ, और जब क्लैडिंग की तरफ शिफ्ट होगा तो लॉसेस होंगे ही होंगे,
तो अभी हम आगे देखते हैं। सो दिस इज द, यहाँ पे देखो सबसे पहला लिखो, ये तो मैंने दोनों चीजें बताई आपके टाइप्स, बेंडिंग लॉस की इस पे वेट पड़ा, चाहे बिल्डिंग का पड़ा या आपका हिल एरिया का कुछ पड़ा डिफॉर्मेशन, उसको बेंडिंग लॉस बोलते हैं। लिखाऊंगा, बाद में लिखा दूंगा, मेन समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना तो बहुत हुआ है। माइक्रो बेंडिंग लॉस एंड मैक्रो बेंडिंग लॉस, मैं पहले मैं बताया हूँ, माइक्रो जो है बहुत छोटा है, मैक्रो से बड़ा लॉस होगा। सो ये है सिंपल केस, जब आप कोई भी बेंडिंग नहीं है, दिस द बेंडिंग, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, और वेव फ्रंट्स में नो डाउट 2 पाई का तो होगा, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा टीआईआर के कारण जो मोड बना है, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द क्लैडिंग एरिया, जो अभी तुमने पूछा। नाउ पहला लिखो टाइप्स 1 माइक्रो बेंडिंग, प्लीज राइट डाउन द माइक्रो बेंडिंग लॉस। पहला माइक्रो बेंडिंग, प्लीज सबको लिख लीजिए माइक्रो बेंडिंग। और माइक्रो बेंडिंग में क्या होगा दिग्विजय, क्या गिरेगा, बिल्डिंग गिरेगी या पहाड़ हिली एरिया गिरेगा? किसमें सर? माइक्रो में? माइक्रो में से बिल्डिंग गिरेगी। बिल्डिंग, तो देख रहे हो एक्सिस में यहाँ पे ज्यादा चेंजिंग नहीं आया है, जहां पे गिरा है फाइबर पे वहां पे ये डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन, और इस डिफॉर्मेशन के कारण जो यहाँ पे जो मोड बन रहा था उसको भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म जो है उसको भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर गिर गया ना, हियर द प्रेशर विल बी अपीयर, सो ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपीयर इज द डिफॉर्मेशंस। एंड देखो कितना लॉसेस होगा, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, और फिर जाके ओवरकम होना स्टार्ट होगा, एम्पलीफायर सब लगाएंगे तो थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं, बट दिस इज द लॉस, दिस लॉस विल बी अपीयर बाय दिस लॉस विल बी एडेड बाय दिस ऐड, जो सारे लॉसेस ऐड हो जाते हैं उसको बोलते हैं कपल्ड। ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, ये सब कपल्ड के कारण होता है, और सारे लॉस मिलके एक लॉस जो बनेगा हमारा, वो टोटल बेंडिंग लॉस बनेगा। प्लीज पहले सबसे पहले अच्छे से बना लीजिए, मैं समझाता हूँ, उसका मैं लिखाऊंगा भी, थोड़ा 2-3 लाइन लिखवा दूंगा मैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। सो माइक्रो बेंडिंग लॉस के बारे में पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन मैं मतलब थोड़ा सा लिखवाना है मुझे, फिर मैं मैक्रो बेंडिंग बताऊंगा अच्छे से डिटेल से। सो इन माइक्रो बेंडिंग एक्सिस, मेनली एक्सिस पे डिफॉर्मेशन आता है, एक्सिस पे डिफॉर्मेशन आता है, एक्सिस ऑफ द फाइबर। ओके, तो प्लीज राइट डाउन, इसके बारे में लिख लो, माइक्रो बेंडिंग के बारे में। This loss always arises. This loss always arise or appears, जो भी लिखना चाह रहा हूं, this loss always appears at the axis of the fiber. पहला, this loss is always appeared at the axis of the fiber. सेकेंड पॉइंट लिख लो, the power is dissipated, the power is dissipated in micro bending loss because of repetitive coupling of energy, because repetitive coupling of energy, repetitive देखो, repetitive coupling of energy, ये इसको बोलते हैं लीकी मोड। प्लीज सब इसको लिख लो, ये जितने भी डिफॉर्मेशन दिख रहा है ना, दिस इज द लीकी मोड्स, और जो सिंपल चल रहा है उसको बोलते हैं गाइडेड मोड्स। लिख लीजिए, ये जो जितना भी, इसको लीक बोलते हैं ना, प्रेशर करने के बाद लीकेज हो गया, मतलब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया। सो द पावर इज डिसिपेटेड इन माइक्रो बेंडिंग लॉस बिकॉज ऑफ repetitive coupling of energy between guided modes and leakage modes.
गाइडेड मोड्स, रिपीटेटिव कपलिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन गाइडेड एंड लीकेज, ये लीकेज मोड है, और सब जो मोड है दैट इज द गाइडेड। तो दोनों को जो कपलिंग हो रहा है, वो जो लॉस बनता है दैट इज नोन एज माइक्रो बेंडिंग लॉस। तो पहला, माइक्रो बेंडिंग लॉस इज ऑलवेज अपीयर एट द एक्सिस ऑफ द फाइबर। दूसरा, it will appear due to coupling of leakage and guided modes, right? So this is the best example of the micro bending loss. So micro bending loss जो है छोटा लॉस है, वो एक्सिस ऑफ द फाइबर पे होता है, और डिफॉर्मेशन के कारण जो हमारा लीकेज मोड बनता है, उसके कपलिंग के कारण हमारा ये लॉस अपीयर होता है, राइट? गाइडेड मोड तो इतना करता नहीं है, बट लीकेज मोड्स विल बी गिव द मोर लॉस इन द बेंडिंग। ओके, सो साकिब सही है, यहां तक सही है? माइक्रो बेंडिंग लॉस। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ, लास्ट पॉइंट है, द पावर इज डिसिपेटेड इन माइक्रो बेंडिंग लॉस, द पावर इज डिसिपेटेड इन माइक्रो बेंडिंग लॉस, मत लिखो माइक्रो बेंडिंग, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव कपलिंग, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव कपलिंग ऑफ एनर्जी, रिपीटेटिव कपलिंग ऑफ एनर्जी between guided modes and leakage modes, guided modes and leakage modes। यदि बेटा जो अभी बोल रहे थे, यदि उस पर लोड नहीं पड़ेगा फाइबर पे, तब तो सब गाइडेड मोड्स हैं, बट जैसे ही कोई लोड गिर गया सडनली से उस पे, तो उसको हम बोलते हैं ये डिफॉर्मेशंस। उसको कौन सा मोड बोलते हैं बेटू? लीकेज मोड। सो लीकेज मोड्स एंड गाइडेड मोड्स, इन दोनों के कपलिंग के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं ना, रिपीटेटिव, क्योंकि देख लो रिपीटेटिव, इस लॉस को हम बोलते हैं माइक्रो बेंडिंग। और कहां पे होता है ये लॉस? सारे कहां पे होता है? माइक्रो ऑलवेज। आर्या, कहां होता है माइक्रो बेंडिंग लॉस? ऑलवेज एट द एक्सिस ऑफ द फाइबर। ओके, सो दिस इज द concept related to micro bending loss that will be appear due to the unwanted deformation at the axis of fiber or bending, right? एंड ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग। तो हमने माइक्रो बेंडिंग समझाया आपको, अब हम मैक्रो बेंडिंग की तरफ चलेंगे। तो पहले आप देख लीजिए माइक्रो बेंडिंग में कैसा दिखता है। तो ध्यान से देखना, ये अपना वेव फ्रंट्स है, ये फेस फ्रंट्स है, तो ये वेव फ्रंट्स है, राइट? कोर एंड क्लैडिंग। और यहाँ पे जो फील्ड वो थोड़ा सा हल्का सा फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं। माइक्रो बेंडिंग लॉस में ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता, बट जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा इन द केस ऑफ मैक्रो बेंडिंग लॉस, उसमें आपको दिखेगा कि वो जो वैल्यूज, वो जो ये कर्वेचर है, वो क्लैडिंग की तरफ ज्यादा चला जाएगा, राइट? तो हम देखते हैं ये मेन फील्ड अभी कहाँ है। देख विकास, देखो इधर जो तुम्हारा क्वेश्चन था। यस सर। स्टार्टिंग में कैसा होता है? मैक्स मीन चलता है, बट अभी जो मैक्स वाला है वो अभी अंदर किसके अंदर है बेटू? कोर के अंदर। यही मैक्सिमम मैक्स का थोड़ा सा पार्ट यदि इधर चला जाए और ये शिफ्ट हो जाए, तो वो बन जाएगा आपका मैक्रो बेंडिंग लॉस इंस्टेड ऑफ माइक्रो बेंडिंग। ठीक है, हम देखते हैं आगे हम ये क्लियर करेंगे। नाउ दिस इज द लॉस। दिस लॉस इज लाइक, बहुत अच्छे से बनाना। दिस लॉस, ये है बेटा, पहले नाम दो ऊपर, उसका नाम दो मैक्रो बेंडिंग लॉस। मैक्रो बेंडिंग लॉस। पहले बनाओ एंड देन आई विल describe one by one. और आप लोग से ये मतलब बहुत इजी है, दिखने में ऐसा लग रहा है, जब मैं एक ही क्वेश्चन में हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखना अभी कि यू कैन एबल टू एक्सप्लेन वेरी इजीली कि कैसे हो रहा है। सो ये है फाइबर। जब कोई हिली एरियाज में या बहुत ज्यादा बैंड हो गया आपका फाइबर, राइट? सो यदि साकिब अनम्यूट करो। यस सर। अब ध्यान से देखना, ये है एक्सिस ऑफ द फाइबर बेटू,
ये है एक्सिस ऑफ द फाइबर, दिख रहा है बेटू? यस सर। ये है XC, ये है XC और ये है R, ठीक है। अब फाइबर को स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेट कर दो, एकदम पूरा स्ट्रेट कर दो। यस सर। तो ये फील्ड जो, ये मेन फील्ड जो इधर तरफ जा रहा है ग्रेडिंग की तरफ, वो अंदर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा, मानते हो? यस सर। हाँ सर। और मेन फील्ड एकदम अलोंग द मेन जो मोड है वो एकदम बीच में पड़ेगा और बीच में रहेगा। उस कंडीशन में मुझे बताओ कि R और XC में रिलेशन क्या होगा, बहुत ध्यान से बताना। R रेडियस है, इसके मतलब कोई रेफरेंस है, ऐसी द कर्वेचर ऑफ दिस फील्ड, ये फील्ड का है और ये अपना फाइबर का है, राइट? तो ध्यान से देखना, यदि मैं स्ट्रेट कर दूंगा तो XC एंड R में क्या रिलेशन होगा, जब मैं बेंड कर दिया तो क्या रिलेशन हो रहा है, ये मेन है मैथमेटिकल रिलेशंस। और ये इस रियली नो, यदि आप ये पकड़ लेंगे तो मतलब हो गया हमारा मैक्रो बेंडिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। हाँ सोचो, बताओ, आराम से सोचो। हाँ मुस्कान, हाँ बताइए। R यदि मैं फाइबर को एकदम स्ट्रेट कर दूंगा, एकदम स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट मतलब कि ऐसा वाला फाइबर, ऐसा, या मैं पहला जो बताया हूं ऐसा, एकदम ऐसा, राइट? तो फील्ड इसमें आया, फील्ड पीक यहां बना और ऐसे आया, तो ये ऐसा, सॉरी ऐसा, ये ऐसा है ना। अब मैंने इसको बैंड कर दिया, बैंड कर दिया मैंने, ऐसे हो गया। तो XC और R में क्या रिलेशन बन रहा है, जब यदि एकदम पीक, यदि मैं स्ट्रेट कर दूं फाइबर को, सोचो और बताओ। कौन बताएगा, एनीवन? सर R के परपेंडिकुलर में हो जाएगा SC थोड़ा। हाँ मतलब यदि तुम स्ट्रेट कर दोगे ना तो R इज नियर अबाउट टू XC हो जाएगा। बैंड करने के कारण तुम्हारा R बढ़ गया है, नहीं बैंड हो गया तो R थोड़ा बढ़ गया, राइट? अदरवाइज R और XC लगभग सिमिलर होता, क्योंकि ये अंदर की तरफ होता तो ये वैल्यू लगभग लगभग सेम होता। बट आपने बैंड कर दिया तो XC थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया ना, मतलब थोड़ा सा ना आगे की तरफ चला गया है, और R जो है वो मतलब थोड़ा सा छोटा हो गया ना। आप देखो ना करके, आप एक बार करके देखोगे तो पता चलेगा बेटू, आप लोग करके देखो बेटू। कोई दो पहले पैरेलल लाइन ले लीजिए, जैसा रिलेशन आए दोनों पहले आप एक फील्ड बना लो, मोड फील्ड डायमीटर, और दोनों का वैल्यू सेम रखो, एक्सिस ऑफ द फाइबर से दोनों का वैल्यू R भी रखो सेम और X भी सेम रखो, XC भी। अब तुम बेंड कर दो, बेंड कर दो, बेंड कर दो फाइबर को बेटू, प्लीज बेंड कर दीजिए। तो XC थोड़ा आगे की तरफ निकल जाएगा और R जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? हाँ बकास। Yes, sir. Let us assume that initially XC and R is same. Let us assume that, right? इस कंडीशन में यहाँ पे बीच में एक्सिस खींचो, बीच में खींचो, वो रेफरेंस पॉइंट से इसकी दूरी R और इधर XC है ना। अब आपने बेंड कर दिया तो XC बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? XC लग रहा है बढ़ जाएगा वो। हाँ XC जो है, जो ये कर्वेचर जो है, ये देखो ना, अभी सेम होता तो XC, लेट अस अज्यूम XC इक्वल टू R था। Yes, अब लेकिन मैं बेंड कर दिया तो XC थोड़ा बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ गया ना, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ये जो है बाहर की तरफ चला जाएगा, नहीं जाएगा? Yes, sir. तो XC जो है बढ़ जाएगा एंड एज कंपेयर टू R, राइट? सो प्लीज राइट डाउन। सर लेकिन यहाँ पे R तो बहुत ज्यादा दिखा रहा है ना, यहाँ पे R दिखा रहा है सेंटर से भी, वो तो ऑलरेडी XC से बहुत ज्यादा दिखा रहा है। हाँ R तो यहाँ तक होना चाहिए था। हाँ मैं R तो ये मतलब एक पूरा एक सर्कल बना रहा है, उसका सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस आ रहा है, वो सेंटर से पूरा का रेडियस बता। हाँ सर, तो वो तो फिर एक्सिस से ज्यादा ही होगा ना। हाँ इस एक्सिस से ज्यादा होगा, लेकिन फिर जब रिलेशन आप पहले तो सिंपल लिख लो कि आप कैसे कर पाओगे वो कैलकुलेट, कि पहले लिख लो, लेट अस अज्यूम दैट
let us assume that r is the radius of the fiber, from r is the radius of the fiber. So ध्यान से देखना, case 1 less band, that is micro banding. Second one is the macro banding. So sharper the banding, क्या होगा? sharper the banding, lower the radius. होगा नहीं होगा? sharper the banding, जितना रेडियस तुम वो और कम कर दोगे और एकदम पूरा वो कर दो, बैंड कर दो, तो रेडियस क्या होता जाएगा आपका? छोटा होता जाएगा. सो शार्पर द बैंडिंग, लोअर द रेडियस और डिक्रीजेस द रेडियस, ऐसा लिखो, डिक्रीजेस द रेडियस. हेंस बैंडिंग लॉस इंक्रीजेस. पहला केस ये सही है प्रकाश, इतना समझ में आया? यस सर. क्योंकि आप देखो ना, स्टेट है और रेडियस कोई ले लिया तो आर बड़ा है और एक दूसरा जब आपने बैंड कर दिया, बहुत ज्यादा बैंड कर दिया, तो आर डैश है, तो आर डैश जो है वो शुड बी आर से कम होगा. क्लियर? यस सर. पहला. सेकेंड केस, लेट अस अज्यूम दैट नील कमल अनम्यूट करो. नील, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ओके. आकांक्षा, ये समझ में आया अभी वाला? हेलो. यस सर. हाँ. नाउ सेकेंड केस, let us assume that xc and r is approximately वाला सेम लगाना बेटा, approximately same. r is similar to xc. in the case of micro bending loss, ब्रैकेट में लिख देना, in the case of micro bending loss. But in the case of macro bending loss, macro bending loss, xc is greater than r. xc is greater than equal to, इक्वल भी हो सकता है क्योंकि उससे छोटा है लगभग, हम तो एजम्पशन ले रहे हैं. तो हमारा जो xc है बेटा, ये क्या होगा आकांक्षा? ये जो फील्ड है वो इधर शिफ्ट होता जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि आप जितना बैंड करते जाओगे ये फील्ड बढ़ता जाएगा. तो xc क्या होता जाएगा बेटू? इंक्रीज. और r इज स्मॉल होता जाएगा. हाँ, तो xc इज ग्रेटर देन इक्वल टू r. बड़ा तो नहीं हो पाता है, बट इक्वल टू टेंस करेगा कि इक्वल टू हो जाए. सो दीज टू केस स्टडी इज रिलेटेड टू मैक्रो बेंडिंग लॉस, राइट? तो राइट डाउन, एनालिसिस में लिख लेते हैं. सो राइट डाउन, सब पहले लिखो मैक्रो बेंडिंग लॉस, उसके बाद मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ मैक्रो बेंडिंग लॉस. हाँ, क्लियर हुआ? साकिब क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर. हाँ, बिकॉज मतलब फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है. एक फील्ड है टीआर वाला, ये टीआर वाला फील्ड एकदम इक्वल था, पर जैसे बैंडिंग लॉस हुआ तो शिफ्ट होने लगा क्लेडिंग की तरफ, इसलिए एक्सी बढ़ता जाएगा. ओके. सो राइट डाउन, इन दिस केस मैक्रो बेंडिंग में लिखना, इन दिस केस फेज फ्रंट्स, पहला, इन दिस केस फेज फ्रंट्स does not move with the same speed. Phase fronts does not, ये phase front जो है with the same speed, क्योंकि बैंडिंग होने के कारण इन दोनों में सारे फेज फ्रंट एक साथ नहीं चल पाते हैं सेम स्पीड, तो अलग अलग स्पीड में चलते हैं, तो फेज फ्रंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. इन दिस केस फेज फ्रंट डज नॉट मूव विद द सेम स्पीड मैक्रो बेंडिंग में. सेकेंड पॉइंट, तो होता क्या है इस फेज फ्रंट के साथ?
नियर सेंटर, देखे ध्यान से साकिब, हेलो, यस सर देख रहा हूँ। देखो ये जो दूर वाला फील्ड है, ये लाइन और ये लाइन में ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन में डिस्टेंस कम है, जो सेंटर के नजदीक है, और जो सेंटर से दूर है उन दोनों में दूरी है। दिख रहा है बेटू? यस सर। वैसे क्या होता है, फेस फ्रंट्स दोनों क्या होता है, हर फेस फ्रंट एक दूसरे के पैरेलल में होता है, देखा था? यस सर। 2 पाई का। बट यहाँ पे देखना, जो अबे सेंटर से अबे है उनकी दूरी तो ज्यादा है, बट नजदीक वाले की कम है। तो राइट नाउ बेंडिंग की वजह से है ना सर ये तो। हाँ, सो लिख लो, नियर सेंटर फेस फ्रंट्स, नियर सेंटर फेस फ्रंट्स, नियर सेंटर फेस फ्रंट्स, नियर सेंटर फेस फ्रंट्स is moving with, near center face fronts is moving with low speed and away face fronts with the high speed, and away face fronts with the high speed. ओके, ये दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं चलता, इसलिए दोनों में जो फेस फ्रंट्स है वो मेंटेन नहीं होता 2 पाई। ड्यू टू दिस फेज कांस्टेंट विल बी। आवाज आपकी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है अब? so here near, so right now near center face fronts is moving with low speed and higher face fronts with the high speed. Due to this phase constant will be changed. Due to this phase constant will be changed. आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, अब आ रही है। हाँ, ड्यू टू दिस सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। एक बार रिपीट कर दीजिएगा, वो सर कट जा रही है आवाज बीच में। अच्छा, अच्छा नेटवर्क के कारण होगा फिर। हाँ, कहाँ से रिपीट करूं बेटू, लिखने वाला? सर हायर स्पीड ड्यू टू दिस। ओके हाँ, नियर सेंटर, हाँ ठीक है, नियर सेंटर लिख लो, नियर सेंटर फेज फ्रंट्स, नियर सेंटर फेज फ्रंट्स is moving with low speed, near center face fronts is moving with low speed and away face fronts with the high speed, and away face fronts with the high speed. Okay, second case 1 and case 2 जो बताया था उसको लिखना है। if in the case of case 1 में, in the case of macro bending loss, Xc is greater than equal to R, assume that initially Xc is very similar to R. Xc is very similar to R. Second, third point, for multimode fiber, comma, higher order modes has more energy loss. Higher order modes has more energy loss. Last point, light wave suffer severe loss. Light wave suffer severe loss due to radiation of, light wave suffer severe loss due to radiation of the even scan field, EVAN SCENT, even scan field in the cladding region. EVAN SCENT field मतलब ये field, ये वाला field, EVAN SCENT field in the cladding region, मतलब main field जो है वो
जब क्लैडिंग एरिया में शिफ्ट हो जाता है उसको बोलते हैं इवन स्कैन फील्ड। सो इवन स्केल फील्ड के कारण हमारा जो लॉस है वो बढ़ता जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंडिंग लॉस, राइट। एज फार एज द डिस्पर्शन, कल हम पढ़ेंगे मोड्स के बेस पे, मोड्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइट। सो पहले मैं फॉर्मूला सब बता दूंगा जो हम यूज करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। And as far as your minor one, I'm going to normalize all these things. Please don't worry. Please first आपका जो टारगेट है, प्लीज आप अपना अपना जो भी कैट का तैयारी कर रहे हैं, कैट का गेट का कर रहे हैं, और जो जॉब सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी तैयारी करें, जॉब लेने का ट्राई करें। जिनका इन्फोसिस में हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छे से कर लें। और थोड़ा जो ऑलरेडी आपके क्वालिफाइड हैं बंदे लास्ट ईयर के, मैंने अपूर्व से भी बात करवाया था, तो आप एक बार बात करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। यदि आप और भी किसी से बात करना चाहते हैं जो आपके सीनियर हैं, तो आप उनसे लें। दूसरा, ये तो ऑल इंडिया वाला टेस्ट है, अपने यहाँ का जो टेस्ट है वो मैं आज मिलूंगा सर से। दूसरा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बच्चे का प्रॉब्लम है, दो बच्चे बोल रहे हैं कि 0.3 से है, ये है, तो ये आपको खुद से बेटा वो करना है ना, चांस लेना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे अकॉर्डिंग प्लीज जॉब पे फोकस करें, क्योंकि एक बार जॉब हो जाएगा तो आपका कैट में स्कोर बहुत अच्छा अपने आप आ जाएगा, गेट में अपने आप अच्छा स्कोर आ जाएगा। दिस इज द रियलिटी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं तो ये बताऊंगा कि मतलब हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा लाइफ में आपको। तो ऐसे बोर हो रहे होगे घर पे कि आप आने का सोच रहे होगे, बट अभी भी 2-3 महीने जो बच्चे हैं आपके पास, हो सकता है आप दिसंबर में आए तो एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है बेटू कि आप अभी इस 3 महीने को, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि सब कुछ छोड़ दीजिए। मतलब अभी 3 महीने पूरा फोकस कीजिए कि नहीं, मुझे 500 रैंक मिलाना है, कैट में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जैसे कि मुझे आईएम्स या XLRI ये सब मिल पाए। तो कहने का मतलब ये 3 महीना अभी जो है ना, अक्टूबर तो लगभग खत्म ही हो गया, अक्टूबर जो भी बचा है हमारा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 2 महीने ही बचे हैं, 2 से 2.5 महीना बचे हैं। पूरा तार लगा दो, फोकस लगा दो कि मतलब 3 घंटा मुझे कंपनी के जॉब के लिए, और बाकी टाइम पूरा मतलब अपना रूम में, मतलब बोलो ना कि हम कैद की तरह होके अपना काम करना है। और बस बहुत अच्छा मौका है आपको, घर में खाना वाना सब मिल रहा है बहुत अच्छे से, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। इंस्टीट्यूट का भी मैंने कल आए थे कुछ बच्चे, तो मैंने नहीं बताया था, इंस्टीट्यूट का भी अपना फायदा है कि हम आप एक दूसरे से कंसल्ट लेते हैं, क्या ये क्या तैयारी करा। और कंपटीशन भावना तभी होती है जब हम सामने को देखते हैं, अरे ये इतना पढ़ रहा है, ये लाइब्रेरी जा रहा है, ये हो रहा है, नो डाउट इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन आप इस तरह से तैयारी करें, सोचे कि सब अपने अपने पे बेस्ट दे रहा है, और आप सोचेंगे, कभी कभी लगेगा यार ये तो तैयारी कर नहीं रहा था, इसका हो गया। ऐसा नहीं होता, वो तैयारी कर रहा था इसलिए उसका हुआ, राइट। वो कभी कोई नहीं बताएगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज 3 महीना अभी आपके पेरेंट्स से बात करना हो तो मैं आई कैन टॉक टू हिम और टॉक टू हर कि आपको 2 महीने के लिए छोड़ दें, एकदम पूरी तरह फ्री करें, और 2 महीने में पूरा तार लगा के करें। जो गेट के लिए है उसके लिए बहुत अच्छा है, मैंने सबको बताया हुआ है। आप सब एक क्रैश कोर्स चल रहा है गेट एकेडमी पे, सो प्लीज क्रैश कोर्स वहां से करें। EMT में जैसे हो गया डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ट्रांजिएंट एनालिसिस, और उसके बाद आ गया आपका नेटवर्क में टू पोर्ट नेटवर्क जो बहुत अच्छा से कर लें, मतलब कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर लें, राइट। EMT में जो ट्रांसमिशन लाइन जरूर कर लें अच्छे से। सो क्रैश कोर्स चल रहा है, फ्री में है, नो डाउट, प्लीज उसको अच्छे से यूज करें आप, बहुत अच्छा है। मतलब मैं किसी कोचिंग का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो नहीं करता हूँ, बट फ्री में मिल रहा है, इतना अच्छा मटेरियल है, प्लीज यूज दिस। और एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, चाहे आप कैट का तैयारी करें या आप गेट का तैयारी करें, आप अपना एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। ओके, सो विद इन मिनट्स मैं वो ले रहा हूँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ, एंड आई विल अपलोड टुडे आल्सो। तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, 2 महीना पूरी तरह से लगा दें, जिसमें भी आप लगे हुए हैं, और टारगेट रख कर लीजिए मुझे 500 रैंक लाना है तो लाना है, चाहे जैसे भी। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे घर में ही एक बच्चे का बहुत अच्छा रैंक आया है नीट में, क्योंकि ड्यू टू ओनली हार्ड वर्क, राइट। और कोचिंग तो है, नो डाउट, आजकल ट्रेनिंग मॉडल है ज्यादा, तो नो डाउट वो तो है, लेकिन आजकल सब फ्री है।
जहां मैं गेट एकेडमी की बात बोल रहा हूँ, दैट इज द फ्री, सो यू कैन यूज दैट वन बेनिफिट। हाँ साकिब, तैयारी चल रही है? किसकी सर? प्लेसमेंट की, और जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ होगा, है ना, बाहर जाने जी का सर। क्या है वो तो आप बता पाएंगे ना मुझे, इसकी जी तो सर। आप बताओगे। क्या इतना अच्छा सर? स्किल है, इतना अच्छा स्किल है तो उसको यूज करना है ना बेटू, जी है सर। ना। हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल है तो उसका यूज करना है, अप्लाई कीजिए। फिर यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे हायर स्टडी करना है तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हर जगह का अभी स्टार्ट हो गया है फॉर्म। यदि नहीं आपको लगता है कि मुझे मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत आगे आगे जाना है तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए। मतलब और ये मत सोचिए कि आपको कब कब कॉल आ जाएगा कहाँ से पता नहीं चलेगा, राइट। और इन्फोसिस का दिया था ना आपने, यस सर। क्या प्रॉब्लम हुआ? सर टाइम नहीं मिला था उसके लिए, मतलब तैयारी करने का। ओके। और रिया, वकास, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं हुआ? वकास, यस सर। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं सर, पेपर तो अच्छा ही गया था। अच्छा गया था, हाँ। तो उसको आप समझिए कि क्यों नहीं हुआ, है ना, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वहां पे तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर देगा कोई, अब जैसे बोलेंगे लड़ाई झगड़ा करके क्वेश्चन चेंज करवाने वाला सब तो होगा नहीं, नहीं है सर, ना। ऐसा नहीं। हाँ रिया जी बताइए, क्यों नहीं हुआ? सर दिया नहीं था। क्यों नहीं? अच्छा, आप कैट का तैयारी कर रही हो? सर नहीं, नहीं। अच्छा दिया ही नहीं था, दिया ही नहीं था, क्यों नहीं दिया बेटू? मैंने सबको बोला है प्लीज, आपका होना नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं होना इट्स नॉट, मतलब मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, आपको बैठना जरूरी है, राइट। और हो जाएगा अभी। इसका कैसा गया टेस्ट कॉग्निजेंट का? किसने किसने दे दिया? कॉग्निजेंट का दिया था कि नहीं दिया था आकांक्षा? यस सर, दिया सर कल। कैसा रहा? पता नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अच्छा नहीं गया। साकिब, आपका कॉग्निजेंट कैसा गया? सर अच्छा था, प्रोग्रामिंग पोर्शन में थोड़ा टाइम कम था तो थोड़ा टाइम लग गया, अटेम्प्ट नहीं कर पाया ज्यादा सारे क्वेश्चन उसके प्रोग्रामिंग के। अच्छा अच्छा, तो बाकी यानी तो मतलब ठीक कहने ही। का मतलब है कि आता है लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। मेरा तो हाँ यही सर, कहने यस। का हुआ। हाँ तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, मैंने हमेशा बोला है। और वो क्या था प्लेटफॉर्म, मतलब डायरेक्टली सिमुलेटर दिया था उन्होंने, कौन सा दिया था यस प्लेटफॉर्म? सर, उसमें अलग अलग तरह के थे, जैसे आपका ऑनलाइन कंपाइलर भी था, मतलब उसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कोड करना था, और ओके कुछ क्वेश्चन जो थे वो डिबगिंग पे थे। ओके, तो तो आप लोग का तो है, मतलब कुछ बच्चों को तो देखो, सब भगवान ने सबको अलग बनाया है, राइट, यही तो अच्छा है। किसी को कोडिंग में अच्छा बनाया है, किसी को कोड में अच्छा बनाया है, तो जहां पे आपको मौका मिले, जैसे इसमें कोड का पार्ट था तो आप लोग को निकालना था। एक आपके साथ एक और लड़का था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं यार, क्या नाम है उसका? मुदक्किर। हाँ मुदक्किर, ऑनलाइन आओ। यस सर। हाँ कैसा गया मुदक्किर? हाँ सर, अच्छा हुआ। वेरी गुड। और इन्फोसिस का कैसा रहा था? सर वो दिया नहीं था। तुम लोग को ना, मैं तो सही बोल रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ खाली, तो फिर मैं बताता हूँ तुम लोग को, इट्स रियली बैड। हाँ बासु महाजन, बासु महाजन। यस सर। हाँ बताओ सबको कि कितना अटेम्प्ट किया था आपने? सर कॉग्निशन में? नहीं, इसमें इन्फोसिस में। सर इन्फोसिस में तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, अटेम्प्ट तो सारा ही करना था। अच्छा, कितना आपको क्या लगा था कि कितना गया होगा कट ऑफ? आपका हुआ है ना? यस सर, हुआ है। हाँ हाँ, थोड़ा बताइए सबको। सर पेपर तो मतलब ठीक हो गया था, ऐसे मतलब था कि ओवर बेटर हो सकता था, बट रिजल्ट पे ऐसे था कि निकल गया, पता नहीं, खुद नहीं समझ आया कैसे हो गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये ऐसा मत सोचो कि यहाँ लोग ये लोग बैठे हुए हैं तो हम कैसे बोलेंगे। देखो आगे होना नहीं होना अलग बात है, बट यू मतलब क्वालिफाई किए हो तो कुछ तो किए हो गया, ऐसा नहीं है ना, तो नहीं इसलिए सर, कैट का पढ़ रहा हूँ ना, तो मे बी कंपैरेटिवली क्वेश्चन इजी लगे थे। वही वही मैं बोल रहा था। तो मतलब क्या लगा कि कौन सा पार्ट ऐसा रहा जो आपके फ्रेंड का नहीं हुआ होगा, कौन सा सेक्शन था?